برطانوی شاہی جوڑے نے دنیا کو نومولود شہزادے کا دیدار کروا دیا ہے۔ شہزادہ ہیری اور میگن مرکل بیٹے کی پیدائش کو ایک خواب کی مانند قرار دیتے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ برطانوی شاہی خاندان میں ننھے شہزادے کے جلوے پرنس ہیری اور میگن مرکل نے بکنگھم پیلس میں دنیا کو اپنے نومولود بیٹے کا دیدار کرا دیا۔ سفید شال میں لپٹے ننھے شہزادے کو اس کے والد شہزادہ ہیری نے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ شہزادہ ہیری نے باپ بننے کے تجربے کو حیرت انگیز قرار دیا۔ میگن مرکل کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا ایک خواب کی مانند ہے۔ شاہی جوڑے نے اظہار محبت اور نیک خواہشات پر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادہ ہیری اور میگن مرکل کے ہاں پیر کے روز بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، تاہم شہزادے کا نام ابھی تک نہیں رکھا گیا۔ شہزادہ تخت کی دوڑ میں 7ویں نمبر پر ہے۔ برطانوی وزیر اعظم تھریزا مے کے نائب ڈیوڈ لیگنٹن نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے ایک رکن ملک کے طور پر برطانیہ کو یورپی پارلیمانی انتخابات میں حصہ لینا پڑے گا۔ کیبنٹ آفس کے وزیر لیگنٹن کہتے ہیں چونکہ اب اتنا وقت نہیں بچا کہ بریگزٹ کے کسی معاہدے کو ملکی پارلیمان سے منظور کروا کر لندن یورپی یونین سے نکل جائے، اس لیے برطانیہ کو اب اسی مہینے ہونے والے یورپی پارلیمانی الیکشن میں حصہ لینا ہی پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ توقعات کے برعکس تھریزا مے کی حکومت اور اپوزیشن کی لیبر پارٹی کے مابین بریگزٹ سے متعلق مذاکرات جمود کا شکار ہو چکے ہیں۔ یورپی یونین کے انتخابات 23 مئی کو ہوں گے۔ پاکستان اس وقت سرمایہ کاری کے حوالے سے پرکشش ملک ہے۔ پاکستان میں نئی حکومت آنے کے بعد اوورسیز سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے۔ ان خیالات کا اظہار گوادر میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی ایرونیکس ڈیولپرز کے ڈائریکٹرز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ تفصیلات جانیں گے سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ ایرونیکس ڈیولپر یوکے کے زیر اہتمام گوادر میں اپنے دوسرے پروجیکٹ مورینا کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایرونیکس کے ڈائریکٹرز وحید الرحمان میاں، ارشد قریشی اور حماد ملک کا کہنا تھا کہ گوادر میں تیزی سے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے گوادر میں پاکستان کے سب سے بڑے ایئرپورٹ کے سنگ بنیاد کے بعد ترقیاتی کاموں میں تیزی آئی ہے۔ تھوڑا سا ڈفرنس ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سی پیک کو کس طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے فالو کر رہے ہیں، اور جو لوکل لوگ ہیں وہ اس کو کس طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں۔ سیکنڈلی جو لوکل انوائرمنٹ ہے انویسٹمنٹ کا وہ کس طریقے سے اور اوورسیز کے لیے کس طریقے سے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت سرمایہ کاری کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں گوادر کے اوپر لگی ہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک جس میں ایران، چائنا، قطر اور دیگر عرب ممالک اپنی فیکٹریز اور کارگو کے سیٹ اپ کے لیے گوادر کو ترجیح دے رہے ہیں، جس سے اس خطے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لوکیشن اس کی سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ مکران کوسٹل ہائی وے کے اوپر ہے جو اس وقت ایران اور کراچی کو کنیکٹ کرتا ہے۔ سو دس ول بیکم اے میجر ہائی وے لنک بٹوین دی ٹو کنٹریز، اور گوادر کا یہ مین کیا کہتے ہیں لاجسٹیکل جہاں سے ساری ٹرانسپورٹیشن ہوا کرے گی۔ اس کے اوپر یہ واقع 50 ایکڑز کی سوسائٹی ہے مرینا انکلیو کے نام سے، اور اس وقت ہم لوگ پروموشن آفر دے رہے ہیں اس کی ٹل دا مین لانچ which is up to 20%۔ ایرونیکس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ گوادر میں اپنا سیکنڈ پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہی ہے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے تو پاکستانیوں کا پہلے بھی رجحان ہے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کا، لیکن نئی گورنمنٹ کے بعد زیادہ لوگوں کی دلچسپی وہاں پہ بڑھی ہے، اور ریسنٹلی ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے بھی وہاں پہ جا کے ایئرپورٹ کا بھی سنگ بنیاد رکھا ہے، تو وہاں پہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ دن بدن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ ادھر زیادہ ہے۔ تو پہلے ہم نے ایک سوسائٹی لانچ کی اور اب یہ دوسری لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور رمضان چونکہ آ رہا ہے تو اس کے لیے سافٹ لانچ رکھا ہے اور اچھے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ رکھا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ بالکل اسی طرح جیسے یو کے میں آپ جاتے ہیں رمضان میں آپ کو ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ملتی ہیں، تو اس پہ بھی ہم نے ڈسکاؤنٹڈ پرائس رکھی ہے رمضان کے مہینے کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ ٹائم بڑا اچھا ٹائم ہے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ یا کسی بھی اور سیکٹر میں انویسٹ کرنے کے لیے۔ تو اوورسیز پاکستانی جو یو کے میں ان کے لیے پیغام ہے ہمارا کہ آپ جو ہے وہ پاکستان میں ضرور انویسٹمنٹ کریں، پروموٹ کریں پاکستان۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم نے
अपना दूसरा प्रोजेक्ट गवादर में लॉन्च किया है, ब्लू ओशन रेजिडेंसी, जिसको हमने 10 महीने पहले लॉन्च किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमारा रहा। कुछ लोगों की कुछ डिमांड्स थी लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद अब आज हमने जो लॉन्च किया है उस डिमांड्स को पूरा करते हुए लोकेशन सेलेक्ट की है। ये एक सोसाइटी है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े डिसेंट साइज़ की सोसाइटी है, 50 एकड़ की, जिसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों कैटेगरीज मौजूद हैं। एरोनेक्स डेवलपर्स ने अपने नए प्रोजेक्ट मोरिना एनक्लेव्स मंसूबे का ऐलान किया। उनका कहना था कि ये प्रोजेक्ट मेन हाईवे के ऊपर वाक़े है और इसकी अफादियत बहुत ज्यादा है। ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में गवादर में सरमायाकारी कर रहे हैं। उन्होंने रमजानुल मुबारक के हवाले से कीमतों में खसूसी डिस्काउंट का भी ऐलान किया। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही बरतानिया के कई सुपर स्टोर्स मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खसूसी बचत ऑफर्स का ऐलान करते हैं। खरीदारों को सस्ती और म्यारी अशिया की फरोख्त का सिलसिला चांद रात तक जारी रहता है। तफसीलात जानेंगे सफदर बुखारी की रिपोर्ट में। बरतानिया, यूरोप और दीगर ममालिक में ये रवायत मौजूद है कि सुपर स्टोर्स खास त्योहारों पर खसूसी डिस्काउंट ऑफर्स का ऐलान करते हैं, जिनसे शहरी खूब फ़ायदा उठाते हैं। ये सुपर स्टोर्स गैर मुस्लिमों के साथ साथ मुसलमानों के मजहबी त्योहारों पर भी खसूसी बचत ऑफर्स करते हैं। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए बरतानिया के कई शहरों में सुपर स्टोर्स ने रमज़ान मुबारक की खसूसी ऑफर्स का ऐलान कर दिया है। ल्यूटन के शहरी भी बड़े स्टोर्स की जानब से ऐलान करदा खसूसी ऑफर्स का फ़ायदा उठाने में मसरूफ़ हैं। ल्यूटन बरतानिया का एक कसीर और सकाफती मल्टी फेथ टाउन है, जिसमें मुसलमानों की आबादी बड़ी तादाद में रहश पजीर है। ल्यूटन के स्टोर्स ने खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स पर न सिर्फ रमज़ान मुबारक के बैनर्स अवेज़ा कर रखे हैं, बल्कि ग्रॉसरी पर मुसलमान सार्फिन के लिए खसूसी बचत का ऐलान भी किया है, जहाँ से मुसलमान कम्युनिटी भरपूर शॉपिंग करती दिखाई देती है। न सिर्फ बड़े स्टोर्स बल्कि पाकिस्तानी और एशियाई रेस्टोरेंट्स की जानब से भी देसी ख्वाबों पर खसूसी रायत का ऐलान किया गया है। रमज़ान में इफ्तारी के मौके पर पकौड़े, समोसे, चावल, दूध, जलेबी हर दस्तरखान का हिस्सा बनते हैं और शहरी बड़ी तादाद में देसी ख्वाबों की खरीदारी करते दिखाई देते हैं। मुसलमान कम्युनिटी ने सुपर स्टोर्स की जानब से रमज़ान के हवाले से खसूसी पैकेजेस के ऐलान पर खुशी का इजहार किया है। वॉल्सर में वकील पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद ने हालिया बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबियां समेट कर मुनफरिद रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसी बारे में देखते हैं इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट। विनिस वेलफेयर ट्रस्ट के बानी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अब्दुल खालिक कादरी और उनके खानदान ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अब्दुल खालिक कादरी के बेटे खिजर हुसैन कादरी, बेटी साइका नसरीन, नवासी फरहाना मजर और भांजी हाजरा बशीर ने बल्दियाती इंतखाबात में मैदान मार लिया। इन सब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपोजिशन लेबर पार्टी की टिकट पर काउंसलर्स के इलेक्शन जीते हैं। तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानी काउंसलर्स जो मुंतखब हुए हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। खुसूसन ये खुशी का मकाम है कि हमारी नौजवान नस्ल बरतानिया के अंदर सियासत में अपना किरदार अदा कर रही है और वॉल्सल कौंसल के अंदर इस वक्त कश्मीरी निजात जो कौंसलर मुंतखब हुए हैं उनमें मैं खुसूसी तौर पर कौंसलर खिदर और कौंसलर साइका नसरीन, कौंसलर फरहाना मज़र और कौंसलर हाजरा बशीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो कश्मीरी पाकिस्तानी लोगों के मसाइल हल करेंगे और उनके मसाइल हल करने में अपना किरदार भी अदा करेंगे और नौजवान नस्ल को पाकिस्तान बरतानिया के अंदर सियासत में अपना किरदार अदा करने में उनकी रहनुमाई भी करेंगे। First of all, I would like to thank every person who voted for me. I look forward to working alongside the community with women and children, deprived families. I would also like to encourage people especially from the Kashmiri background, young people to come into politics. There are plenty of opportunities available and we need to represent our community, I think, in the wider spectrum. लेबर पार्टी को ऑन करता हूँ और मैं समझता हूँ कि लेबर पार्टी ही पसमानदा लोगों के लिए बेहतर है और एजुकेशन के सिलसिले में भी ये बेहतर है और नेशनल सर्विस के लिए भी बेहतर है। वैसे टोरी के बाद लोगों को तो मिल्क स्नैचर भी कहा जाता है और ख़ासकर जो एजुकेशन के सिलसिले में उन्होंने ग्रांटें कट की हैं, ये जुल्म की इंतहा है। गरीब आदमी तो पढ़ नहीं सकता। अलबत्ता कौंसलर खिजर हुसैन कादरी और कौंसलर साइका नसरीन कादरी और कौंसलर फरहाना मदर कादरी और कौंसलर हाजरा बशीर जो इस दफ़ा हमारे वार्ड से इलेक्ट हुए हैं, ये 3 तो नए आए हैं और कौंसलर खिजर हुसैन कादरी तीसरी बार सिलेक्ट हुए हैं और वो वार्ड साउथ लेबर पार्टी के चेयरमैन भी हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनको ये ज़रूर कहूँगा, ये मेरा बेटा है और बेटी है और पोती है और वो भतीजी है
कि इनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, लेकिन लोगों ने वोट दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1527 वोट से मुझे उन्हें लीड दी और मेरे पे ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि मैं उनकी फिर दोबारा खिदमत करूं, उनके काम करूं, उनके मसाइल हल करूं। तो मैं प्लेक अवाम का ख़ास तौर से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। फिर और मेरी ज़िम्मेदारी और भी थी, मैं वोसत साउथ CLP का चेयर हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी दूसरे हल्कों में भी थी, पोफरी में भी थी, सेमातिस में भी थी, बेंटी डालिस्टन में भी थी, और भी हल्के हैं, फीजी भी थी। तो उधर भी मैंने जो हमारे कैंडिडेट से प्लेक में भी कामयाबी से अलावा पोफरी में हजा बशीर कामयाब हुई, सेमातिस में फराना मज़र कामयाब हुई, डालिस्टन साथ में डग जेम्स कामयाब हुआ है, और बेंटी डालिस में साइका नसरी कामयाब हुई। अब्दुल खालिक कादरी और उनके ख़ानदान ने वॉल्सल के अवाम की खिदमत जारी और सारी रखने के अज़म का इजहार किया है। जी का ज़माना क्या, अब UAE में शहरियों को मिलेगी जदीद और तेज़ तरीन 5G इंटरनेट की सहूलत, जिसमें डाटा की मुंतकली की रफ्तार 71 गीगाबिट फी सेकंड होगी। इत्तसालियात ने 5G इंटरनेट का कामयाब तजर्बा भी कर लिया। इत्तसालियात की जानिब से रवां साल अक्टूबर में होने वाले GTEX टेक्नोलॉजी में वीक में अपनी नई 5G इंटरनेट टेक्नोलॉजी को पेश किया जाएगा, जबकि इत्तसालियात के मुताबिक 5G इंटरनेट 2020 में UAE भर में दस्तयाब होगा। ये टेक्नोलॉजी की इंतहाई जदीद शक्ल है जो सार्फिन तेज़ रफ्तार डाटा मुंतकली की सहूलत फराहम करेगी। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में पहली बार खित्ता पोटोहार की मशहूर शेरखानी महफिल सजाई गई, जिसमें कश्मीरी कम्युनिटी समेत दीगर अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद मीर की रिपोर्ट में। ग्लासगो में पहली बार पोठोहारी जुबान में शेरख्वानी की महफिल सजाई गई, जिसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों, खसूसन गोजर खान, मीरपुर, दीना और पोठोहार के खित्ता से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की और महफिल में रंग जमाते हुए अपने पसंदीदा गुलकारों पर दिल खोल कर पाउंड्स की बारिश भी की। शुरकाए महफिल ने 92 न्यूज से बात करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स बाकायदगी से होते रहने चाहिए ताकि उनके बच्चे अपनी सकाफत और शायरी से जुड़े रहें। पहला पटवारी शो 15 साल बाद अज ग्लासगो आए, पहले कराया स्टर्लिंग जो अल्हम्दुलिल्लाह आलवी भरिया और अपनी सकाफत लोग वतन अजीज बैरून मुल्क भी है, लेकिन अपनी सकाफत नहीं भूले। मैं उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाल भी भरिया से तुम्हें पता कि शायद मीर साहब इतने पटवारियों की तादाद बड़ी कम है, लेकिन फिर भी सारे लोग वर्किंग डे है और आए तो प्रोग्राम देखा ने। और पाकिस्तान तो आलमी शोहरत याफ्ता शेरखान चौधरी शाम गुजर साहब ने पूरी महफिल सजाई। पहली बार स्कॉटलैंड आया इतने प्रोग्राम से साढ़े बहुत सारे शाम चौधरी शाम साहब आ गया जी, चलो सरकार इस वजह नाल आया प्रोग्राम बहुत अच्छा आया, बहुत भरावान की कोशिश ना दे रहा, बहुत प्यारा प्रोग्राम आया। यूके में बल्कि स्कॉटलैंड में पहली दफ़ा हुआ। वैसे तो हमने पाकिस्तान में पहले भी सुना था, लेकिन यहाँ जो सुना है तो मज़ा ही उसका अलग आया, क्योंकि बड़ी मुद्दत के बाद सुना है और एक अजब पटवारी का रंग ही अजब है। उसका तो एक सफर मलूक जो होती है ना, वो वैसे ही मुँह में घुस जाती। मुकामी मशहूर गुलकार शमशाद वहीद गनी ने भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मौसीकी की ये महफिल रात गए तक जारी रही। आखिर में इंतजामिया ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।